Good morning, everyone. Today I'm going to deal with the last chapter, that is training in sports. So, first of all, what is training? Training is the process of preparation for any task. Suppose if you are going to do any kind of task, then you must have to prepare for that task. For example, you are going to appear for a class test. So, before going to appear in the class test, you will prepare yourself for the test. So, in the preparation, what you will do? You will study, you will take test of yourself, you will consult to your friends, your parents about the topics, you will consult to your subject teachers. So, these are the processes for preparation to appear in the test. So, this is training. Training is the process of preparation for any task. Now, in the field of sports, what is training? Training is the preparation of sports person. In the field of sports, training is the process of preparing sports person for achieving their highest level of performance at the time of competition. कंपटीशन के टाइम पे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन अगर अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे पा रहा है तो डैट इज़ देयर ट्रेनिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग. उनको जितना अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे. सो इन दिस चैप्टर we are going to study about the various physical fitness components and their training methods to develop these kind of physical fitness components. The first one is strength. What is strength? Strength is the ability of muscle to overcome resistance. You have already studied about the strength. So there are two types of strength: dynamic strength and static strength. Dynamic strength means it is related to the movement which is clearly visible. When your muscle moves and generate force to overcome any kind of resistance, then this is called dynamic strength. And dynamic strength is also known as isotonic strength. Don't get confused in the exam that you haven't studied about isotonic strength. Okay, sometimes instead of asking dynamic strength, questions will come like what do you mean by isotonic strength? So dynamic strength is same as isotonic strength. Both are synonyms. Dynamic strength is of diminishing tendency in which muscle refuses to work after some times. इसमें क्या होता है कि हमारा जो मसल है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. तो क्या होता है, एक टाइम आता है जब वो उसका लिमिट पहुंच जाता है, जो उसका लिमिट रहता है हाईएस्ट लिमिट, तो उसके बाद वो मसल अब पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और फिर वो काम करना बंद करता है. फिर उसको रिकवरी टाइम चाहिए अपने वापस उस पोजीशन में आने के लिए. इन ईच स्पोर्ट मूवमेंट स्ट्रेंथ अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म. हाँ, हर एक स्पोर्ट्स का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रेंथ का. लाइक जितना रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ फुटबॉल में चाहिए उतना वॉलीबॉल में नहीं चाहिए होगा, है ना. तो हर एक स्पोर्ट्स का अपना अलग रिक्वायरमेंट है और डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होता है. लाइक डायनेमिक स्ट्रेंथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली जब आप वेट लिफ्टिंग में देखोगे तो वेट लिफ्टिंग में जो जितना ज़्यादा वेट उठाता है वो ही जीतता है. तो एक ऐसा टाइम आता है जब आप उस वेट को उठाते हो और उस वेट को उठाने के बाद आप फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसके बाद आप उस वेट को दोबारा नहीं उठा पाते. तो डैट इज़ योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मीन्स आपने अपना फुल स्ट्रेंथ लगा दिया उस वेट को ओवरकम करने में, उसके बाद दोबारा आप में एनर्जी नहीं बचे कि आप दोबारा उसको उठा सको. दिस इज़ योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब आप किसी भी स्ट्रेंथ को ओवरकम कर रहे हो कितना मिनिमम टाइम में, मीन्स स्ट्रेंथ प्लस स्पीड. लाइक जितने भी जंपिंग इवेंट्स होते हैं, लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप,
वॉलीबॉल में जंप करना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें क्या यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इन स्विमिंग। वाटर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है और आप उस रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली ओवरकम करते रहते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। The second type of strength is static strength. Static strength is also known as isometric strength. जैसे कि डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसी तरह स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि डायनेमिक में क्या होता है, मसल का मूवमेंट विजिबल होता है, मसल मूव करता है और फोर्स जनरेट करता है, बट स्टैटिक स्ट्रेंथ में मसल का मूवमेंट नहीं होता है, विजिबल भी नहीं होता है। मसल जिस पोजीशन में रहता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो एथलीट है वो होल्ड करके रखा हुआ है उस पोजीशन को, जिसमें इसका मसल का मूवमेंट भी विजिबल नहीं है। तो ऐसे एक्शंस को, ऐसे एक्टिविटीज़ को, ऐसे एक्सरसाइज को हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। Methods for improving strength: number 1, isometric exercises; number 2, isotonic exercises; number 3, isokinetic exercises. So isometric exercise, तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक टर्म का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो सेम लेंथ, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल। वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जब मसल का कोई चेंज ही नहीं होगा, मसल का मूवमेंट ही नहीं होगा, तो वर्क डन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कोई कवर हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही पोजीशन में आप होल्ड करके हो। जैसे पुशिंग द वॉल को पुश करना, एक ही पोजीशन पे आप होल्ड करके रख रहे हो, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। आप किसी पोल में लटक के रहे हो, तो इसमें आपका स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन 0 ऑब्जर्व किया जाता है। रिक्वायर लेस टाइम एंड इक्विपमेंट, यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी। आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स। नंबर 2 इज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसो का मतलब सेम, टोनिक मीन्स टेंशन, मीन्स सेम टेंशन थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ द मसल। आइसोटोनिक में क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रेंथ, मीन्स देयर इज मूवमेंट ऑफ मसल्स मूवमेंट कैन बी सीन। Lengthening and shortening of muscles can be seen and called eccentric contraction and concentric contraction. तो आप यहाँ देखेंगे 2 टर्म यूज़ हुआ है, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल को, मीन्स जब मसल सिकुड़ता है तो मसल छोटा होता है, तो वो सेंटर की तरफ मूव करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन से आप याद रखोगे कंसेंट्रिक, मीन्स जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक, और उसका ऑपोजिट है इसेंट्रिक। जब मसल रिलैक्स होता है, जब मसल लंबा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक। व्हेन वी थ्रो अ बॉल, जंप, रन, weight training, these type of contraction occurs. Exercise can be done with equipment or without equipment. Increase the flexibility and length of the muscles and are good for conditioning in sports. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक में सेम टेंशन होता है, चेंजिंग ऑफ लेंथ, मसल का लेंथ चेंज होता है। तो आप फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे मसल लंबा हुआ है ना, मसल नीचे, जब हम हाथ को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो मसल का लेंथ बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। जब हाथ को ऊपर की तरफ करते हैं, एरो देखिए ऊपर की तरफ है, तो मसल छोटा होता है, सिकुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक। उसी तरह आइसोमेट्रिक में हम इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, वहाँ पे कोई मसल का चेंज नहीं आता है, बट जो टेंशन है वो चेंज होता है, क्योंकि आप किसी भी मतलब चीज़ को अगर होल्ड करके रखो, सपोज जब मैं आपको योगा करवाती थी तो बोलती थी कि इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए, तो होता था कि कुछ समय बाद आप सभी हिलने डुलने लगते थे, दर्द होने लगता था, टेंशन फील होने लगता था। तो मसल में
तो इसमें क्या होता है, लेंथ चेंज नहीं होता है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल में टेंशन डेवलप होता है। The third one is isokinetic exercise. Iso means same, kinetic means motion. This exercise was introduced by J.J. Perrine in 1968. Exercises are done using specially designed machine and are combination of isotonic and isometric exercises. आप जैसे अभी जिम में देखे होंगे बहुत सारा ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिससे हम अपना फिटनेस वर्कआउट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टेशनरी बाइक, तो ये सब क्या करता है, ये मशीन एक कंट्रोल मूवमेंट पैटर्न फॉलो करवाता है जिसमें थ्रू आउट द मोशन, जिसमें मोशन क्या होता है, सेम होता है। जितनी देर आप एक्सरसाइज करोगे मोशन सेम होगा। मशीन अलाउ फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। These type of movements are usually applied in water sports, skating, climbing, running. Means ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें साइक्लिक मूवमेंट हो, एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे आप रनिंग करते हो तो रनिंग में क्या होता है, आपका पैर कंटिन्यूसली एक ही मूवमेंट को रिपीट करता है। जब आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग में भी सेम मूवमेंट रिपीट होता है, स्विमिंग में भी सेम मूवमेंट रिपीट होता है। तो ये ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं इसमें हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करते हैं। नंबर 2 इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। मीन्स अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी एक्टिविटी को सस्टेन करके रख रहे हो विदाउट गेटिंग टायर्डनेस, तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है, एंड्योरेंस। Also defined as the ability to resist fatigue. In all sports, endurance is of high importance, measured by the number of repetitions. There are two classification of endurance. Number 1 is type of endurance according to the nature of activity. तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक इंड्योरेंस। बेसिक इंड्योरेंस का मतलब इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म योर डेली वर्क it means you are having basic endurance. General endurance means आप सारे मोटर स्किल्स परफॉर्म कर पा रहे हो, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, तो ये आपका जनरल इंड्योरेंस होता है। एक होता है स्पेसिफिक इंड्योरेंस। स्पेसिफिक इंड्योरेंस का मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक गेम खेल रहे हो, लाइक आप फुटबॉलर हो और फुटबॉलर होने के लिए आपको कितना इंड्योरेंस का ज़रूरत है, वो इंड्योरेंस अगर आपके पास है, डैट इज़ योर स्पेसिफिक इंड्योरेंस। द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंड्योरेंस इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्पीड इंड्योरेंस। स्पीड इंड्योरेंस का मतलब वैसी एक्टिविटी जो 7 सेकेंड से 40 सेकेंड तक के बीच में हो। अगर इस ड्यूरेशन वाला जो एक्टिविटी आप करते हो तो वो स्पीड इंड्योरेंस में आता है। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में 45 सेकेंड से 2 मिनट्स तक, इतने ड्यूरेशन वाले एक्टिविटी शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में आते हैं। मिडिल टर्म इंड्योरेंस में 2 मिनट से 11 मिनट तक, और लॉन्ग टर्म में मोर देन 11 मिनट्स। ठीक है, सारा टाइमिंग का बस खेल है। स्पीड इंड्योरेंस में क्या होता है, 7 सेकेंड से 40 सेकेंड्स। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस में 45 सेकेंड से 2 मिनट्स। मिडिल टर्म में 2 मिनट से 11 मिनट, और लॉन्ग टर्म में मोर देन 11 मिनट्स। Now, methods to develop endurance. Number 1 is continuous training method. Continuous training method में 2 तरह के होते हैं, slow continuous and fast continuous. Continuous training method में क्या होता है, exercise is done for a long duration without taking rest. Continuous means continuity है, there is no interval, no rest. इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज लो होता है, जैसा कि इसमें रेस्ट नहीं होता, तो हम जो इंटेंसिटी है, जो एफर्ट लगाते हैं वो लो लगाते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हार्ट रेट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 140 से 160 बीट्स पर मिनट। फास्ट कंटिन्यूस जो होता है
उसमें फास्ट कंटिन्यूअस मेथड में हार्ट रेट जो होता है इंक्रीज होकर कितना तक जाता है, 175 से 180 बीट्स पर मिनट. इंटरवल मेथड, आफ्टर कंटिन्यूअस मेथड देयर इज द अनदर वन इज इंटरवल मेथड. इंटरवल मेथड जैसा नाम से पता चल रहा है, हम बीच में इंटरवल लेते हैं, लेकिन जो इंटरवल मीन्स जो रेस्ट पीरियड होता है वो कंप्लीट रेस्ट नहीं होता है, वो एक्टिव रेस्ट होता है. जैसे कि आप देखिए लास्ट पॉइंट में एक्टिविटी आप करते हो, लाइक 40 मिनट्स तक एक्टिविटी कर रहे हो, फिर एक्टिव रेस्ट, तो फिर आप उतना टाइम का एक्टिव रेस्ट ले रहे हो. मीन्स जैसे कि आप फास्ट रनिंग कर रहे थे तो फिर आप स्लो जॉगिंग या वॉकिंग करने लगोगे, फिर आप अगेन 40 मिनट्स का रनिंग करोगे, फिर एक्टिव रेस्ट, फिर एक्टिविटी, फिर जाकर कंप्लीट रेस्ट. तो इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी थोड़ा हाई होता है. हार्ट रेट जो है वो आपका 180 बीट्स पर मिनट तक भी चला जाता है, और जब आप एक्टिव रेस्ट में होते हो तब आपका हार्ट रेट कितना नीचे आना चाहिए, 120 से 130 बीट्स पर मिनट. थर्ड वन इज फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड. ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग मेथड है. फार्टलेग इज अ स्वेडिश वर्ड विच मीन्स स्पीड. तो फार्टलेग जो है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, हम ये डिपेंड करता है सरफेस पे, है ना. जैसे कि आप हर सरफेस पे उतना ही स्पीड के साथ नहीं दौड़ सकते. जैसे आप अभी नॉर्मल ग्रास वाले ग्राउंड पे जितना तेज़ दौड़ सकते हो उतना आप सैंड वाले ग्राउंड पे नहीं दौड़ पाओगे, बालू में आप उतना तेज़ नहीं दौड़ पाओगे. तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में हम सरफेस चेंज करते रहते हैं. सपोज आप 20 मिनट्स रनिंग के नॉर्मल ग्रासी ग्राउंड पे, उसके बाद आप वुडन सरफेस पे रनिंग कर सकते हो, सैंड वाले सरफेस पे रनिंग कर सकते हो, वाटर में रनिंग कर सकते हो, हिली एरियाज़ पे मतलब जैसे अपर स्लोप है उस पर आप रनिंग कर सकते हो. तो ऐसे ऐसे सरफेस चेंज होता है जिसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो भी चेंज होता है और आपको रिकवर होने का टाइम मिलता है. तो ये जो है इसका जो ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए 45 मिनट्स, और जो हार्ट रेट है वो कहाँ तक जाएगा, अप टू 140 टू 180 बीट्स पर मिनट. There are various advantages of these methods like continuous training methods, increase glycogen in muscles and liver, increases the number and size of mitochondria, increases the efficiency of heart and lungs, intensity can be increased for better results. Like increases glycogen. Glycogen क्या होता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है, जितना आप एनर्जी यूज़ कर पाते हो आप करते हो, लेकिन कुछ बहुत सारे जो ग्लूकोज होते हैं वो बच जाते हैं. तो जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में मसल्स में या लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में. और जब आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी एक्टिविटी शुरू करते हो तो वही ग्लाइकोजन सबसे पहले एनर्जी रिलीज करता है. सेकेंड इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन. इसमें क्या होता है, आप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हो, आप फास्ट करते हो, फिर स्लो हो जाते हो, फिर फास्ट, फिर स्लो. तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा वर्कआउट होता है कम टाइम में. मोर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड ईजिली. एथलीट अचीव्स हिज पीक परफॉर्मेंस इन अ शॉर्टर पीरियड. जब आपके पास टाइम कम है कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए, तो फिर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. इसके डिसएडवांटेज भी है. मोर चांसेस ऑफ इंजरी एज देयर आर लेस नंबर ऑफ डेज, और आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना है तो चांसेस ऑफ इंजरीज बढ़ जाते हैं. रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिजीज. टॉप परफॉर्मेंस कम्स बिफोर कॉम्पिटिशन. Third one is fartlek training method. Improves cardiovascular endurance, good for aerobic and anaerobic fitness, makes the body versatile. Number of athletes can take part simultaneously. Difficult to judge trainees' effort. हर एक ट्रेनी का अपना अपना अलग एफर्ट होता है. लाइक कोई ऐसा होता है जो कि हिली एरिया पे ज़्यादा तेज़ दौड़ पाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी में भी तेज़ दौड़ पाते हैं. तो हर किसी का एफर्ट हम जज नहीं कर सकते क्योंकि ये सरफेस पे डिपेंड करता है. May cause accidents. Appropriate check on trainees cannot be maintained. The third one is speed. What is speed?
It is the ability or capacity of an individual to perform a movement of the same pattern at a faster race. Means आप कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो. डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट मूवमेंट्स एंड क्विक रिएक्शंस. स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी फैक्टर स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. जैसे आपने सुना होगा एथलीट्स आर बोर्न, मीन्स स्प्रिंटर्स आर बोर्न नॉट ट्रेंड. स्पीड जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके हेरिडिटी फैक्टर पे, है ना. स्पीड को आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हो जब तक कि वो आप में पहले से ही नहीं है. जैसे उसैन बोल्ट है तो वो उसके हेरिडिटी में है कि वो इतना अच्छा इतना तेज़ भाग पाता है. स्पीड को हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते. अगर आपके बॉडी में फास्ट ट्विच मसल फाइबर मीन्स वाइट मसल फाइबर ज़्यादा है तभी आपका स्पीड ज़्यादा होगा. अगर आप में रेड मसल फाइबर ज़्यादा है तो आप कभी स्प्रिंटर नहीं बन पाओगे, आपका स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होगा बट एक स्प्रिंटर के लिए 100 मीटर स्प्रिंट मारने के लिए जो स्पीड चाहिए उतना आप डेवलप नहीं कर पाते. सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड योर हेरिडिटी. टाइप्स ऑफ स्पीड. रिएक्शन एबिलिटी. Reaction ability is the ability to respond quickly and correctly to a stimulus. जैसे आप 100 मीटर का स्टार्ट होता है तो उसमें क्लैप का साउंड होता है या गन शॉट का आवाज़ होता है. तो जैसे ही गन शॉट होता है आप उस स्टिमुलस का क्या और कितना सटीक रिएक्शन दे रहे हो, कितना क्विक रिएक्शन दे रहे हो, डैट इज़ योर रिएक्शन एबिलिटी. The second one is acceleration ability. Acceleration क्या होता है? Change in velocity और increase in velocity is called acceleration. तो कितना fast आप accelerate कर पा रहे हो, velocity increase कर पा रहे हो, that is your acceleration ability. Next is movement speed. It is the ability of muscle or a group of muscle to contract at maximal स्पीड इन अ सिंगल कोर्स ऑफ मूवमेंट. एक कोर्स ऑफ मूवमेंट में आप कितना मैक्सिमम स्पीड दिखा पा रहे हो, अचीव कर पा रहे हो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, दैट इज़ योर मूवमेंट स्पीड. नेक्स्ट वन इज़ लोकोमोटर एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमल स्पीड फॉर मैक्सिमल डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन. जैसा कि 200 मीटर रेस में आप देखते हो उसमें क्या होता है, 200 मीटर में आप स्लो नहीं भागते हो, आप इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो विथ मैक्सिमम स्पीड. नेक्स्ट इज स्पीड इंड्योरेंस. स्पीड इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट्स क्विकली अंडर कंडीशन ऑफ फटीग. नाउ मेथड्स टू डेवलप स्पीड. तो सबसे पहला मेथड है एक्सेलरेशन रन. It is used to develop speed indirectly by improving explosive strength, technique, flexibility and movement frequency. इसमें क्या क्या हम जैसे कि अगर आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपका टेक्निक जो है वो आप अच्छे से सीख जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो आप में, मूवमेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए आपका, तो आपका क्या होता है, अल्टीमेटली स्पीड बढ़ जाता है. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंटर टू अचीव हाई स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन. जैसे कि आप 100 मीटर का स्टार्ट देखो तो आप उसमें बैठ के रहते हो और वो जो पोजीशन रहता है वो आपका स्टैटिक पोजीशन होता है और उस पोजीशन से आप कितना क्विक भागते हो उसको ब्रेक करके, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन. मीन्स आपकी वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज होता है, जीरो से इंक्रीज होता जाता है, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन एबिलिटी. For direct improvement of acceleration speed, a sprinter should do 25 to 30 meter sprints 6 to 12 times. इसको इंक्रीज़ करने के लिए 25 से 30 मीटर का स्प्रिंट मतलब रेस लगाना, कितना फास्ट आप दौड़ रहे हो, 6 से 12 बार करना चाहिए. द मैक्सिमम स्पीड शुड बी अचीव्ड विद इन 5-6 seconds. Sufficient intervals should be provided between the
रेपिटेशन, जब आप रेपिटेशन कर रहे हो, जैसे 25-30 मीटर का आप 6 से 12 टाइम्स रिपीट कर रहे हो बार बार, तो उसमें सफिशिएंट इंटरवल भी होना चाहिए क्योंकि रिकवरी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज पेस रन्स। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो भी आपका डिस्टेंस है, लाइक 800 मीटर डिस्टेंस है, तो उसको आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ रहे हो, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं। जनरली 800 मीटर एंड above races are included in pace races. An athlete can run a distance of 100 meter at full speed, but in longer races such as 800 meter or above, he must reserve his energy by reducing the speed. For pace run training, an athlete should run at maximum steady speed for a distance which is 10 to 20% more than the racing distance of the event. मतलब जैसा कि अगर आपको 800 मीटर के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको डिस्टेंस बढ़ा के प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे 800 मीटर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1000 मीटर का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस कंपटीशन में अच्छा हो। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। What is flexibility? It is the range of movement of the joints. Range of movement varies significantly from joint to joint. हर एक joint का अपना अलग range होता है movement करने का, and depends on the structure of the surrounding tendons, ligaments, muscle tissue. Flexibility is related to genetic factors and physical activity programs. Flexibility also depends on genetic factors. टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपने पहले भी पढ़ा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर आप कोई एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, दैट इज़ योर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर आप बिना किसी हेल्प के आप खुद स्ट्रेच कर पा रहे हो, दैट इज़ योर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स डाइविंग, स्टार्टिंग पोजिशन इन मैनी स्पोर्ट्स, मीन्स जिसमें आप होल्ड करके रखते हो, कोई मूवमेंट नहीं होता, बॉडी को स्ट्रेच करके होल्ड करके रखना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जब कोई इंडिविजुअल मोशन में हो, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो जिम्नास्ट कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है और बॉडी को स्ट्रेच भी कर रहा है। मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है बॉलिस्टिक मेथड। बॉलिस्टिक मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विद रिदमिक स्विंगिंग इन द मैक्सिमम रेंज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। मीन्स स्विंगिंग मूवमेंट होता है। जैसे अब बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज है, डांसिंग मूवमेंट्स है, जिसमें आप कंटिन्यूसली स्विंग करते हो और बॉडी जब स्विंग के साथ साथ स्ट्रेच भी होता है, इसको हम बॉलिस्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इन स्टैटिक स्ट्रेचिंग द मसल इज स्ट्रेच्ड टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। जैसा कि आप योगा में करते हो, योगा आसनास में मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेच होता है, फिर उसको हम होल्ड करके रखते हैं। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड में क्या होता है? इसमें हम कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं। जैसे आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें आपका स्ट्रेचिंग भी होता है प्लस आप मूवमेंट भी कर रहे हो। फोर्थ वन इज प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन PNF टेक्निक बोलते हैं इसको, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, दैट इज PNF टेक्निक। इट रेजेस द एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड इम्प्रूव्स मोटर परफॉर्मेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कि कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हो, सपोज आप लेग स्प्लिट कर रहे हो और उसको होल्ड करके रखे हो, जैसे ही आप 20 सेकेंड होल्ड किए फिर तुरंत उठ के एक्सरसाइज करना है। मीन्स स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों एक साथ करना है। एक साथ मीन्स ऑल्टरनेट करना है, एक के बाद एक। पहले आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग किए फिर तुरंत डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना है,
तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है और बहुत अच्छा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर आपको बहुत कम टाइम है और आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज coordinative abilities. What is coordination abilities? These are the abilities of an individual which enables him to do various related activities properly and efficiently. Accuracy, rhythm, flow and consistency depend on coordinative abilities. इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइक नंबर 1 इज ओरिएंटेशन एबिलिटी. Orientation ability is the ability of a sports person to determine the position of the body and its parts in time and space with the respect to gravity and moving objects like ball. जैसे आपको बॉल को कैच करना है या फिर बैट से हिट करना है तो बॉल जिस टाइम पे आएगी आपके पास उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ उस पोजीशन को लेना है और बॉल को बैट से हिट करना है. तो डैट इज़ योर ओरिएंटेशन एबिलिटी. मीन्स आप अच्छे से ओरिएंट कर पा रहे हो उस चीज़ को. कपलिंग एबिलिटी. कपलिंग एबिलिटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन टू सिस्टमेटिकली कंबाइन मूवमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि आप मार्च पास्ट करते हो तो आपका हाथ और पैर दोनों चलता है एक साथ, है ना. तो लेफ्ट हैंड उठ रहा है तो राइट लेग उठना चाहिए, लेफ्ट लेग उठ रहा है तो राइट हैंड उठना चाहिए. तो दोनों को आप एक साथ कंबाइन कर रहे हो. इसको हम कंबाइनिंग एबिलिटी भी बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी को. तो ये आपका अलग कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है. थर्ड वन इज रिएक्शन एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू अ स्टिमुलस. जैसे आपको कोई थप्पड़ मारने जा रहा हो और आप तुरंत अपने गाल को हटा लेते हो, सिर को हटा लेते हो, डैट इज़ योर रिएक्शन एबिलिटी. There are two types of reaction ability. Number 1 is simple reaction ability and number 2 is complex reaction ability. In complex reaction ability, the reaction has to be given immediately and accurately to unexpected and unpredictable signals. For example, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपका ओपोनेंट कब किस तरह से टैकल करेगा बॉल को आपको पता नहीं है. मीन्स आप बिल्कुल अननोन है उस चीज़ से और जैसे ही वो आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्विक उसमें रिएक्शन देना होता है. डैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और सिंपल में क्या होता है, आपको पता रहता है कि ऐसा हो रहा है और आपको उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो रिएक्शन देने के लिए. Next is balance ability. It is the ability to maintain equilibrium of the body in both dynamic and static positions. जैसे आप हेड स्टैंड करते हो, हैंड स्टैंड करते हो, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके रखना बॉडी को किसी भी पोजीशन में. रिदम एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ मूवमेंट. कोई भी मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसका रिदम होता है, लाइक इन डांसिंग मूवमेंट, तो ये सब में रिदम बहुत ज़रूरी होता है. उस रिदम को अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो इट मीन्स यू आर हैविंग रिदम एबिलिटी. नेक्स्ट इज एडेप्टेशन एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द एंटिसिपेटेड चेंजेस इन अ सिचुएशन. द चेंज इन सिचुएशन मे बी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, डिटरमाइंड और अनडिटरमाइंड. इट इन्वॉल्व्स द ऑप्टिक एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो तो इसमें हमेशा सिचुएशन चेंज होते रहता है. कभी आपको सडन बॉल मिल जाएगा, कभी आपका पोजीशन सही नहीं है फिर भी आपको बॉल मिल जाता है, आपको बास्केट करना होगा या फिर गोल करना होगा, जैसे फुटबॉल में गोल करना होगा. तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, डैट इज़ योर एडेप्टेशन एबिलिटी. Next is differentiation ability. Differentiation ability is the ability to achieve a high level of accuracy and economy of separate body movements. हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट में
आप एक्यूरेसी ला पाते हो, परफेक्शन ला पाते हो, डैट इज़ योर डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी। तो ये इतने सारे थे, टोटल 7 एबिलिटीज़ है जो कि किस में आते हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ में। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, तो प्रैक्टिसिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, करेक्ट एंड कंसियस मूवमेंट्स, एडिशनल मीन्स टू इम्प्रूव मोटर सेंसेस, वेरिएशन इन एक्सरसाइजेज, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी। थैंक यू।